تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ریاست مفلوج ہے، وہ عورتوں کو اور پاکستان کے شہریوں کو حفاظت نہیں دے سکتی۔ اس کا مطلب ہے پاکستان میں اس وقت کوئی رول آف لا نہیں ہے، اپنی حفاظتیں خود کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ عورتیں شام کو گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ایک ٹاک شو میں کہتا ہے کہ میری ماں جب میں 6 سال کا تھا تو مجھے ساتھ لے کے جاتی تھی اپنی حفاظت کے لیے۔ تو سی سی پی او لاہور صاحب، اس ماں کے ساتھ بھی 3 بچے تھے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے اوپر تھی، ریاست کے اوپر تھی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر تھی۔ آپ کا یہ بیان کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عورتیں محفوظ ہیں، اس کی نفی کرتا ہے، آرٹیکل 9 کی نفی کرتا ہے آف دا کانسٹیٹیوشن۔ اور آپ نے کہا کہ آج ریاست عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتی کیونکہ یہ فرانس نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ آج پاکستان میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے کیونکہ یہ فرانس نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ملک میں آج ریٹ آف اسٹیٹ نہیں ہے کیونکہ یہ فرانس نہیں ہے۔ یہ سی سی پی او لاہور کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے جس نے اس سی سی پی او، اس لاڈلے کو رکھنے کے لیے آئی جی کو تبدیل کر دیا۔ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتی، میں آج سیاست پہ بات نہیں کروں گی کیونکہ میں ہر روز کرتی ہوں۔ اس بیان کے اوپر آج پاکستان کی 11 کروڑ بچیاں، بیٹیاں یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ اس سی سی پی او کو نوکری سے نکالا جائے، اس سی سی پی او کو عبرت کا نشان بنایا جائے، اس سی سی پی لاہور کو اس کے ساتھ وہ کارروائی ہو کہ آنے والے جتنے افسران ہیں ان کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کی جائے۔ یہ بیان اتنی ہی سزا اس بیان پر ان کو دینی چاہیے جتنی اس ریپسٹ کو دی جائے گی، جو یہ ریپ وکٹم شیمنگ کرتے ہیں اور افسران کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کے اوپر ہوتے ہیں، کال آف ڈیوٹی کی نفی کرتے ہیں اور اپنا برڈن، اپنی نااہلی کا برڈن، اپنی اوورسائٹ کا برڈن کس پر ڈالتے ہیں؟ اس مظلوم ماں پر جس کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ فوری طور پر اس کو نوکری سے برخاست کرنا چاہیے، اس سی سی پی او کو، کیونکہ جب تک یہ سی سی پی او رہا پاکستان میں، پنجاب میں، لاہور میں عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، نہیں ہو سکتی۔ ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ اس سی سی پی او کو نوکری سے نکالا جائے فوری طور پر۔ اور دوسرا مطالبہ ہے کہ اس مقدمے کی، یہ جو سانحہ ہوا ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے، اندھوناک واقعہ ہوا ہے، اس مقدمے کی انویسٹیگیشن کے اوپر دہشت گردی کی دفعہ لگے۔ یہ وہ ذہنی دہشت گردی ہے جس کا نشانہ معصوم بچیاں، معصوم بیٹیاں، معصوم مائیں بھگت رہی ہیں۔ اور جو سی سی پی او لاہور ہے وہ اس کے اوپر کیا کہتا ہے؟ وہ اس مقدمے کی انویسٹیگیشن کرانے پہ کہتا ہے میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ بیٹیوں والوں، بہنوں والوں، ہوش کرو، خیال کرو، دھیان کرو کہ میری ریاست، میرا محکمہ، میں مفلوج ہوں، میں حفاظت نہیں دے سکتا۔ بہنیں، بیٹیاں اور ماؤں والے اپنی بچیوں کی حفاظت کریں۔ تو میرا سی سی پی او سے ایک سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی مائیں اور آپ کی بہنیں فرانس رہتی ہیں؟ کہاں رہتی ہیں وہ اسی ملک میں رہتی ہیں۔ اور دوسروں کی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کی طرح ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کی عزتیں محفوظ رہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کو یہاں کا آئین وہی تحفظ فراہم کرے جو 11 کروڑ عوام کی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کو فراہم کیا جاتا ہے، جو پاکستان کے شہریوں کو فراہم کیا جاتا ہے۔ دہشت گردی کی دفعہ لگے، دوسرا مطالبہ ہے، اور جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ ہے۔ یہ تینوں چیزیں پاکستان کی خواتین
इस वक्त मुतालबा कर रही हैं। और अगर इस सीसीपीओ को नौकरी से ना निकाला गया तो आइंदा आने वाले वक्त में खुदा ना खास्ता इसी तरह रेप विक्टिम शेमिंग होती रहेगी, इसी बेगैरती के साथ होती रहेगी, इसी बेहिसी के साथ होती रहेगी जिसका मुजाहरा सीसीपीओ लाहौर ने किया। माओ, बेटियों और बहनों के वालिदैन और भाइयों को तंबी करने से पहले हम आपको तंबी कर रहे हैं कि इस्तीफा दें, और अगर इस्तीफा ना दें तो इनको नौकरी से निकाला जाए। और मैं एक और तंबी कर रही हूं इन खवातीन की को रिप्रेजेंट करते हुए कि जो वुज़रा हैं वो अपनी जबानें बंद करें। इस मौके के ऊपर, इस हादसे के ऊपर इस किस्म के बयानात नाकाबिले कबूल हैं और बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अनएक्सेप्टेबल रवैया अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस वाकये के ऊपर। ये मुतालबात यहां खत्म नहीं होंगे, ये तब तक जारी रहेंगे जब तक ये पूरे नहीं होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की बेटियों का सवाल है, ये पाकिस्तान में औरतों के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है, ये पाकिस्तान की उन वालिदैन का सवाल है जिनके आज घर मातम बिछा हुआ है। और ऐसे बहुत से केसेस हैं जो इस माइंड सेट की वजह से रिपोर्ट नहीं होते, जहां वालिदैन को हरास किया जाता है, जहां विक्टिम्स को शेम किया जाता है, उनका बाजू बनने की बजाय, उनका सहारा बनने की बजाय, कानून उनकी हिफाजत करने की बजाय इस सीसीपीओ लाहौर जैसे बेशरम और बेहया शख्स उस माइंडसेट इनकरेज करते हैं उन लोगों को जो इस किस्म की दरिंदगी करते हैं, जो इस किस्म की दहशतगर्दी करते हैं। इसलिए हम सबका मुतालबा है कि जल्द से जल्द इन मुतालबात के ऊपर अमल किया जाए और किसी को अगर बचाने की कोशिश की गई सीसीपीओ लाहौर समेत तो उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। मैडम एक तो ये बताइएगा कि जो सीसीपीओ उमर शेख है उनके हवाले से इससे कबल भी रिपोर्ट जब वो डीजी खान में रहे तो उनके खिलाफ रिपोर्टें आती रही कि वो ऐसे लोगों को वहाँ पर प्रमोट करते रहे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो ग्रुपों में इस वक्त तकसीम दिखाई देती है। एक जानिब वुज़रा ये कह रहे हैं कि उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सीसीपीओ के खिलाफ और उसको फौरी तौर पर सीट से हटाना चाहिए, जबकि दूसरी जानिब कुछ वुज़रा और कुछ मामले खसूसी ऐसे हैं जो उनको डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं। और दोनों चीज़ों को आप किस नज़र से देखती हैं? देखिए, बात बड़ी सिंपल है। जैसे मैंने पहले ये कहा कि यहाँ खवातीन जो हैं तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ से आई हुई हैं, तो मैं एक पार्टी की हैसियत से तर्जुमान की बात नहीं करूंगी, लेकिन बिल्कुल मौजूद हैं इस सीसीपीओ लाहौर की करप्शन, इनके इसी किस्म के रवैये, मिसकॉन्डक्ट की तमाम रिपोर्ट्स आपके पास भी हैं, मीडिया के पास भी हैं, हमारे पास भी हैं। लेकिन जब इस तरह के लाडलों का दिफा रियासत करेगी, वजीर आजम पाकिस्तान करेगा, उस सूबे का वजीर आला करेगा, पूरी काबीना करेगी, तो नताइज के लिए इसी किस्म की हैरानगी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात जो आपने की दो ग्रुपों में, मैं उनको भी सलाम पेश करती हूं जो इस हुकूमत के साथ होते हुए उस मजलूम मां का साथ दे रहे हैं, और वो लोग जो इस मजलूम मां के दिफा में नहीं बल्कि सीसीपीओ लाहौर के दिफा में है, उसको अगर यहां सजा न मिली तो अल्लाह ताला की अदालत में जरूर जवाब देना पड़ेगा। और पंजाब के अंदर आपको याद होगा कि एक ज़ैनब केस आया था, आपको याद होगा उस वक्त वजीर आला कौन था, और जिसने उस वक्त रात को चैन से नहीं बैठा था, पूरा सिस्टम हिला के रख दिया था और कैफरे किरदार तक पहुंचाया था। और जिस तरह पूरे सिस्टम ने मिलकर, तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर मुजरिम को सजा दिलवाई थी, आज भी पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम वही तवक्को रखती है, पाकिस्तान की औरतें वही तवक्को रखती हैं ताकि ये ज़ैनब बनने का सिलसिला बंद हो,
और औरतों को उनका आईनी हक मिल सके पाकिस्तान के हर शहरी की तरह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी अच्छा मैडम ये बताइएगा कि पूरी कौम जो है वो इस तरह के दरिंदों के लिए सजा जो बता रही है वो बता रही है सजाए मौत या फिर सरेआम फांसी की सजा तजवीज़ कर रही है। तो आप लोग तो कानून बना रहे हैं, पहले भी इस तरह की एक करारदाद कौमी असम्बली में आई जिसकी मुखालफत अपोजिशन बेंचेस की जानिब से भी की गई और कोई हुकूमती अरकान भी ऐसी थी जिन्होंने उसकी मुखालफत की। क्या आप लोग कोई ऐसा कानून आप लेके जाएंगे कौमी असम्बली में बनाने के लिए? देखिए, सबसे पहले बात तो है कि कानून मौजूद है। अगर उस कानून की नफी कानून नाफिज करने वाले अदारे और अफसरान करेंगे तो आप इसकी सजा सजाए मौत भी रख दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल मैं और खवातीन जितनी हैं वो समझती हैं कि सरेआम लटकाना चाहिए, सजाए मौत देनी चाहिए, और उस कानून की हमने उसका साथ भी दिया था और उसको वोट भी किया था। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जब बयान ऐसा होगा जो कोई कानून उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, वो कानून की नफी करे, तो उस पे कोई भी कानून हो वो इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता जब तक इस तरह के अफसरान जो होंगे वो तानियात किए जाएंगे। क्योंकि ये है नया पाकिस्तान और बहुत नया पाकिस्तान, जिसमें मोटरवे पे बोर्ड लगेगा कि रात को अंधेरे में औरतें गाड़ी ना निकालें। रोटे मोटरवे की एंट्रेंस पे कहा जाएगा कि रात को अगर औरत निकली, सड़कों पे शहराओं पे बोर्ड लगेंगे कि अगर खातून रात को निकली अकेली, जीटी रोड नहीं मोटरवे पे, तो वो अपनी इज्जत की खुद जिम्मेदार है, अपनी हिफाजत की खुद जिम्मेदार है, क्योंकि रियासत मफलूज है, क्योंकि वो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं कर सकती। ये है असल बात। इस पे कानून मौजूद हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले और ऊपर से लेकर नीचे तक को ये पता होना चाहिए कि कानून कैसे नाफिज किया जाता है। देखिए, बात ये होती है कि रियासत जो होती है ना, वही इस इखलाकी पैराडाइम को बनाती है, वही इस इखलाकी ढांचे को तश्कील देती है। अब आप ये देखें कि लाहौर, इस एग्जाम्पल में देखें, लाहौर सियालकोट मोटरवे पे पुलिस नहीं है, मोटरवे पेट्रोलिंग नहीं है, फेंसिंग मौजूद नहीं है। वहां जो लोग हैं और उनकी तो इखलाकी पस्ती, मैंने जैसे पहले कहा कि मैं अल्फाज में इस दरिंदगी को, इस दहशतगर्दी को बयान नहीं कर सकती। जो लोगों ने ये फेल किया, लेकिन उसके ऊपर एक रियासत की जिम्मेदारी होती है। क्यों नहीं 6 महीने हो गए, मोटरवे पुलिस ने क्यों फेंसिंग नहीं की, क्यों पुलिस पेट्रोलिंग वहां नहीं थी? यहां वजीर जो कम्युनिकेशन का वो कहता है कि जी टोल बढ़ा दो, टोल कम कर दो। उसको ये नहीं पता कि सियालकोट लाहौर मोटरवे के ऊपर कोई फेंसिंग मौजूद नहीं है, वहां पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं है, वहां मोटरवे पुलिस मौजूद नहीं है। और जब औरत फोन करती है, उस पे जो ये बड़ा बड़ा लिखा होता है कि यहां फोन करें, हेल्पलाइन है, वहां आपको जवाब मिलता है कि लाहौर पुलिस को फोन करें, लाहौर पुलिस से जवाब मिलता है FWO को फोन करें। ये जिम्मेदारी रियासत की है और इसकी सजा भी रियासत को मिलनी चाहिए, उन मुजरमों वाली सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने इसके ऊपर ओवरसाइट किया और इसको इग्नोर किया। देखिए, मैंने कोई जज्बात की बात नहीं की, मैंने बड़ी इससे ज्यादा जज्बात की बात मैं कर सकती हूं जो मेरे और इन खवातीन के इस वक्त जज्बात हैं। लेकिन मैंने तमाम कानूनी पहरावों में
मैंने बात की है कि जो इस किस्म का बयान देगा, जो इस किस्म का बयान देगा वो भी दरिंदा है, वो भी दहशतगर्द है, मैंने ये कहा है। और वही सजा उसको मिलनी चाहिए जो उन मुजरिमों, उन दहशतगर्दों और उन दरिंदगों को मिलेगी, ये मैंने बोला है। आपने अच्छा किया कि आपने रिपीट करा लिया, मेरी बात री इन्फोर्स हो गई। बहुत शुक्रिया।